हाँ भाई ध्यान दे रहे। द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए साइंस फिक्शन ड्रामा सेट इन द 25th century. It is narrated as historical account for how Earth was once in danger of being invaded by Martians. The story is presented humorously but carries a strong message about the power of books and human intelligence. The narrator historian explains how a simple book saved the Earth from destruction. द बुक दैट सेव द अर्थ एक विज्ञान कथा नाटक है जिसकी पृष्ठभूमि 25वीं शताब्दी में है। यह कहानी बताती है कि कैसे पृथ्वी पर मंगल ग्रह के निवासियों द्वारा आक्रमण का खतरा था। यह कहानी हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई है, लेकिन इसमें पुस्तकों और बुद्धि की शक्ति का गहरा संदेश छिपा है। द मार्शियन वर प्लानिंग टू इन्वेड अर्थ बिकॉज देयर प्लेनेट वॉज बिकमिंग uninhabitable. The leader think tank was highly proud of his intelligence and believed that Martians were far superior to humans. He ordered his crew members Noodle, Omega and Oop to collect information about Earth before launching the invasion. मंगल ग्रह के निवासी पृथ्वी पर आक्रमण की योजना बना रहे थे क्योंकि उनका ये ग्रह रहने योग्य नहीं रहा था। उनका नेता थिंक टैंक अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंडी था, खुद को मनुष्यों से श्रेष्ठ मानता था। उसने अपने साथियों को पृथ्वी की जानकारी इकट्ठे करके भेजा। द मार्शियन लैंडेड सेक्रेटली इन अ लाइब्रेरी ऑन अर्थ. दे फाउंड स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट कॉल्ड बुक्स. सिंस दे हैड नेवर सीन बुक्स बिफोर, दे मिसइंटरप्रेटेड देम एज मैकेनिकल डिवाइसेस. Think Tank assumed that books were weapons capable of harming Martians and ordered his crew to decode their purpose. मंगल ग्रह के लोग चुपचाप पृथ्वी की एक लाइब्रेरी में उतरे। वहाँ उन्हें किताबें मिली। उन्होंने सभी कभी किताबें नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें मशीन समझ लिया। थिंक टैंक ने मांग लिया कि किताबें खतरनाक हथियार हैं। द मार्शियन रीड अ बुक टाइटल्ड मदर गूज. द रेम्स confused them completely. Think Tank misunderstood the Reims and believed they were secret codes meant to destroy Mars. His fear increased and he ordered the crew to evacuate Earth immediately. मंगल ग्रह के लोगों ने मदर गूज नाम की किताब पढ़ी। उसकी कविताएं उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। थिंक टैंक ने इन कविताओं को गुप्त कोड समझ लिया और डर गया कि यह मंगल को नष्ट कर सकती है। Later another book, Humpty Dumpty, was read, which further terrified Think Tank. He thought humans were extremely dangerous and intelligent. Without realizing the truth, he called the invasion and escaped with his crew to Mars. इसके बाद हम्प्टी डम्प्टी नामक कविता पढ़ी गई जिसने थिंक टैंक को और डरा दिया। उसने मनुष्यों को अत्यंत खतरनाक समझ लिया और तुरंत आक्रमण कर रोकने का आदेश दिया। Thus book Save the Earth without any war or violence. The play highlights how ignorance and overconfidence can lead to failure. While knowledge and wisdom are powerful tools, it also emphasizes the importance of books and reading. इस प्रकार बिना युद्ध के ही किताबों ने पृथ्वी को बचा लिया। यह नाटक दिखाता है कि अज्ञानता और घमंड विनाश का कारण बनते हैं, जबकि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। Who was the leader of the Martians? मंगल ग्रह का नेता कौन था? थिंक टैंक. Where did the Martian land on Earth? मंगल ग्रहवासी कहाँ पर उतरे? लाइब्रेरी में. What did the Martian think books were? मंगल ग्रह के लोगों ने क्या सोचा किताबों के बारे में? Weapons, कोई मशीन वगैरह है. Which book confused the Martians the most? कौन सी किताब ने मंगल ग्रह के लोगों को कंफ्यूज किया? मदर गूज. How was Earth saved? पृथ्वी कैसे बचाई गई? किताब और गलतफहमी से. एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक. थिंक टैंक का चरित्र चित्रण करो. थिंक टैंक इज द लीडर ऑफ द मार्शियंस एंड represents arrogance and ignorance. He considers himself extremely intelligent but lacks real understanding. His overconfidence leads him to misinterpret simple nursery rhymes as dangerous codes. Instead of analyzing fact, he jumps to conclusions. His fear of books and human intelligence ultimately saves the Earth. Through Think Tank, the author criticizes blind pride and highlights that true intelligence lies in humanity and learning. थिंक टैंक मंगल ग्रह का नेता और घमंड व अज्ञानता का प्रतीक है। वह खुद को अत्यंत बुद्धिमान समझता है, लेकिन वास्तविक समझ से वंचित है। उसका घमंड पृथ्वी को बचा लेता है। हाउ डिड बुक सेव द अर्थ? किताब ने पृथ्वी को कैसे बचाया? Book confused the Martians and created fear in their minds. Their lack of knowledge turned books into powerful weapons.
किताब को पढ़ा, गलतफहमी हो गई और ये पृथ्वी बच गई। व्हाट इज़ थीम ऑफ द प्ले, इस जो नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? द थीम हाईलाइट द पावर ऑफ नॉलेज बुक्स एंड द डेंजर ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। ये कहानी हमें संदेश देती है कि बुक में शक्ति होती है और गलतफहमी आदमी के पतन का कारण बनती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमर इन द प्ले, इस कविता में हास्य क्या है? ह्यूमर मेक द सीरियस मैसेज एन्जॉयबल एंड मेमोरेबल, कि ये जो कॉमेडी से क्या होता है, कठिन से कठिन चीज़ भी आसानी समझ में आ जाती है। व्हाट मैसेज डज द प्ले गिव टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को क्या संदेश देता है ये नाटक? द प्ले टीचेज दैट रीडिंग एंड एजुकेशन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ ह्यूमनिटी, इंसानियत के सबसे बड़े जो हथियार है, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है मानवता की, वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा से कोई भी आदमी जीत सकता है।